English grammar class. How are you children? I hope you are fit and fine and doing your studies properly. So children, as you know that the date sheet and the syllabus for the upcoming PT2 or half yearly exams has already been given to you. So I am sure that you must be preparing for your exams well. So children, we will start today's English class with the discussion of the password. Our password for today is floating. What is the meaning of this word? It means to stay on the top of a liquid. So its sentence can be a houseboat is a floating house. It has another meaning, that is to move slowly in the air. So its sentence can be the clouds are floating across the sky. So that was about our password. Now what we are going to do today in our English class, children. As you know that we are doing our chapter number 4, nouns, singular and plural. So we will have a quick recap of the discussion that we had in our previous class, and then we will be doing exercise B and C that are on page number 25. And after that we will be discussing our homework, that is learn question answer number 1 and 2 of chapter 2, The Fly. Its test is on 28th August. So let us start. So children, as you know that we have been doing chapter number 4 in our English grammar book. Our topic is nouns, singular and plural. So we all know that what is a noun. Noun क्या होता है children? Naming words are called noun. Naming words को हम noun बोलते हैं. Name, place, animal, thing और an idea, ये जो होते हैं वो noun होता है. But when we are talking about singular noun क्या होते हैं? जो singular noun are one in number, वो one होते हैं number में, counting में. When we are talking about only one, then we use singular noun. And when we are talking about more than one, जब हम एक से ज़्यादा की बात करते हैं, so these are called plural nouns. ये plural noun होते हैं. I told you earlier and I have repeated many times that most of the nouns we use at the end s. s हम लगा देते हैं तो वो plural form में convert होता है. I am talking about most of the nouns. सभी नहीं children, most of the nouns. So we will have a quick recap of the rules that we discussed in our previous English class. So let us start. So children, rule number 1 that we had discussed is nouns that end with s, ss, sh, ch और x. ऐसे noun जिनके end में, ऐसे noun word जिनके end में s, ss, sh, ch और x आता है, उनके लिए हम क्या ऐड करते हैं? es to form the plural of the noun. हम उनके साथ es ऐड कर देते हैं ताकि हम उसे plural में convert कर सकें. We have some examples. बस, buses. Here you can notice s है तो हमने सेम ऐसे ही वर्ड लिखा यहाँ पर और es ऐड कर दिया. नेक्स्ट इज क्लास. वी हैव गॉट ट्विन s. हमें यहाँ पे ट्विन s मिले हैं. सो क्या करेंगे हम? We will consider this rule and then we will write or add es. लास्ट में हम एंड में es ऐड कर देंगे. Then we have brush. Brush sh है, so we will write the main word, that is brush, and then we will add es. Bench. ch is there, here you can see. Then we will add es after writing the main word जो कि singular noun है, उसके एंड में हम es और ऐड कर देंगे इसे प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए. सो वी हैव box बॉक्स. x है, x इज़ देयर इन अवर रूल, सो वी विल ऐड box es. हम es और ऐड कर देंगे. सेम एज विद फॉक्स वर्ड वी विल ऐड es. सो दिस वाज रूल नंबर 1. So children, our rule number 2 is if a noun ends in a consonant. y. कौन सा consonant? y. ड्रॉप द y को ड्रॉप करेंगे एंड देन ऐड ies टू इट्स सिंगुलर फॉर्म. y को ड्रॉप करके हम ies ऐड कर देंगे इन ऑर्डर टू चेंज इट टू इट्स प्लूरल फॉर्म. क्या करने के लिए? सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या रिमूव करना है या क्या ड्रॉप करना है? y जो कॉन्सोनेंट है उसे हम ड्रॉप करेंगे और हम 3 नए लेटर्स ऐड करेंगे ies. हेयर यू कैन सी HOBBY हॉबी. We will remove this consonant y. हमें इसे रिमूव करेंगे and then we will add ies. Same as with pony.
पोनी में भी वाई को रिमूव करेंगे और जो हमारे पास जो लेटर्स हैं PON उनके साथ हम ऐड करेंगे IES. COPY कॉपी, वी विल रिमूव Y एंड देन COP कॉप, IES कॉपीज. ट्रॉफी TROPH रखेंगे और Y को रिमूव करेंगे और यहाँ TROPHIES ट्रॉफीज. हॉबी, हॉबीज, Y रिमूव हो गया एंड देन वी हैव एडिड IES. CANDY कैंडी, कैंडी में Y रिमूव हो गया, CANDIES कैंडीज. So that was rule number 2. Children, this is rule number 3. Nouns ending in F and FE form their plural by changing the F and FE into VES. Here what we have to do, हमें क्या करना है चिल्ड्रन, जो नाउन वर्ड हैं, जो सिंगुलर नाउन वर्ड जो हमें मिला है प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए वी विल रिमूव F. इधर वहाँ अगर F है तो भी और FE है तो भी हम उसे रिमूव कर देंगे और हम क्या ऐड करेंगे VES. Here you can see LEAF लीफ, यहाँ वी कैन सी, वी कैन नोटिस F, तो हम F रिमूव करेंगे और ये जो 3 लेटर्स हमारे पास हैं लेफ्ट LEA एंड देन वी विल ऐड VES लीव्स. लीफ एक पत्ती और एक से ज़्यादा होंगी तो वी विल कॉल इट लीव्स. KNIFE knife, we have been given FE at the end, so we will remove this FE and then KNIVES knives. एक चाकू और एक से ज़्यादा होंगे तो we will say it knives. Wife, FE है so we will remove FE, wives. Wolf, we will remove F and then WOLVES wolves. भेड़िया, भेड़िए. Life, LIFE life, FE है तो we will remove this FE and then LIVES. So children, this is rule number 4. If the Y is preceded by a vowel, अगर Y से पहले जो कि लेटर है वो वॉवल है, इट इज़ लेफ्ट अनचेंज, वो चेंज नहीं होगा, मीन्स Y को हम रिमूव नहीं करेंगे. हमने एक रूल कंसीडर किया था चिल्ड्रन कि जो वर्ड के एंड में Y हो बट Y से पहले कॉन्सोनेंट हो तो हम क्या करते हैं, Y को रिमूव करके हम उसकी प्लेस पर IES ऐड कर देते हैं. सो जैसे कि पोनी, पोनीज, पोनी में PONY था और Y से पहले N कॉन्सोनेंट था तो हमने Y को रिमूव किया और उसको प्लूरल बनाने के लिए PONIES इस तरह से हमने डिस्कस किया था रूल. सो दिस रूल इज़ क्वाइट डिफरेंट कि Y से पहले लेटर अगर वॉवल हो तो Y चेंज नहीं होगा. वी जस्ट ऐड S टू कन्वर्ट इनटू प्लूरल, हम सिर्फ S को ऐड कर देंगे प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए. जो भी नाउन वर्ड हमें मिला है हमें उसे कन्वर्ट करना है प्लूरल में, उसके एंड में Y है और Y प्रिसीड हो रहा है वॉवल से तो वो Y चेंज नहीं होगा. हम सिंपली उस सिंगुलर वर्ड के एंड में S ऐड कर देंगे. सो वी हैव सम एग्जाम्पल्स. BOY बॉय, बॉय आप देख सकते हैं एंड में Y है बॉय वर्ड के, बट Y से पहले O है, O इज़ अ वॉवल, वॉवल है सो इट विल नॉट बी चेंज, Y चेंज नहीं होगा. BOYS सिंपली हम S ऐड कर देंगे. सो बॉय एक लड़का, बॉयज़ एक से ज़्यादा हैं तो वी विल राइट बॉयज़. डोंकी, DONKEY, हेयर वी कैन सी Y से पहले जो लेटर है दैट इज़ अगेन अ वॉवल, E है, E वॉवल होता है सो Y रिमूव नहीं होगा. हम यही रूल अप्लाई करेंगे. DONKEYS, वी विल सिंपली ऐड S टू मेक इट इनटू प्लूरल. सो डोंकी, डोंकीज. KEY की, चाबी, Y से पहले वॉवल है E, इट विल रिमेन अनचेंज्ड और KEYS हम सिंपली S ऐड कर देंगे. एक चाबी, एक से ज़्यादा हैं तो चाबियाँ. ट्रे, अगेन वी कैन सी Y से पहले वॉवल है A तो TRAYS ये हमारा प्लूरल होगा. MONKEY मंकी, मंकी से में भी Y से पहले E वॉवल है तो वी विल सिंपली ऐड S और मंकीज़ हो जाएगा. डे, Y से पहले जो कि वॉवल है A, डेज,
जर्नी, जर्नी क्या है? यात्रा। JOURNEY, वाई से पहले ई वॉवल है, सो इट विल रिमेन अनचेंज्ड एंड देन प्लूरल विल बी JOURNEYS, जर्नीज, यात्राएं. So children, we are discussing the rules that how can we convert a singular noun word to plural noun word. But there are some words that do not follow any rule when changed to the plural form. But कुछ ऐसे भी words हैं जो कोई रूल फॉलो नहीं करते हैं जब उनको प्लूरल फॉर्म में चेंज किया जाता है. लिसन केयरफुली चिल्ड्रन, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कोई भी रूल फॉलो नहीं करते जब उनको प्लूरल फॉर्म में चेंज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, बहुत से वर्ड्स हैं ऐसे, बट हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं. सो वी विल बी डिस्कसिंग दोज एग्जाम्पल्स. मैन, मैन क्या होता है? व्यक्ति, आदमी, पुरुष. और जब हम इसे प्लूरल फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करेंगे? ये ए है, इसकी प्लेस पर हम EN लगाएंगे. इसका मतलब है मोर देन वन. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन, तब हम मैन वर्ड यूज़ करेंगे. जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन, देन वी विल यूज़ दिस वर्ड MEN, मैन. इसे हम मैन बोलेंगे, इसे मेन बोलेंगे. सेम एज वुमेन. वुमेन क्या होती है? औरत, महिला. और एक से ज़्यादा हैं, देन वी विल राइट WOMEN, वुमेन. विमेन भी बोलते हैं हम. दिस इज़ फूट. फूट क्या होता है? एक पाँव. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन, जब हमारे जैसे दो पाम हैं, सो वी विल राइट फीट. फूट, फीट. फूट मीन्स सिंगुलर, फीट मीन्स प्लूरल. TOOTH, टूथ. टूथ मतलब एक दांत. टीथ मीन्स एक से ज़्यादा. देन वी विल राइट दिस वर्ड टीथ. ऑक्स, ऑक्स मतलब बैल. एक से ज़्यादा हैं तो वी विल राइट इट ऑक्सन. ऑक्स, ऑक्सन. चाइल्ड, एक बच्चा. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन, एक बच्चा है तो हम उसे चाइल्ड कह सकते हैं. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन, देन वी विल राइट दिस वर्ड चिल्ड्रन. चिल्ड्रन में हमें S लगाने की आवश्यकता नहीं है. चिल्ड्रन का मतलब ही प्लूरल होता है. इनमें कहीं भी हम S कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इनका ये अपने आप में ये प्लूरल हैं. सो चाइल्ड, चिल्ड्रन. नेक्स्ट इज़ माउस. माउस मतलब चूहा, और एक से ज़्यादा हैं तो वी विल राइट MICE, माइस. मोर देन वन, माइस. गूज. गूज एक बर्ड होता है. When we are talking about one, when we are talking about more than one, then we will write geese. Goose, geese. So ये कुछ वर्ड्स हैं, ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं. हम उन्हें करते रहेंगे डिस्कस, और अपकमिंग क्लासेस में भी आप उन्हें डिस्कस करेंगे. न्यू वर्ड्स आप इंट्रोड्यूस होंगे उन वर्ड्स से. बट ऐसे कुछ वर्ड्स हैं चिल्ड्रन, यू हैव टू लिसन केयरफुली, कि ऐसे वर्ड्स हैं विच डू नॉट फॉलो एनी रूल. वो कोई रूल फॉलो नहीं करते हैं. सम सिंगुलर नाउन्स डू नॉट चेंज देयर फॉर्म व्हेन दे बिकम प्लूरल्स. कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन वर्ड हैं जब उन्हें प्लूरल में कन्वर्ट करें तो वो दे रिमेन अनचेंज्ड. वो अपने सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं. इधर इट इज़ जो कि सिंगुलर है या प्लूरल है, तो वो वर्ड अनचेंज रहता है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं आता. फॉर एग्जाम्पल, शीप, डियर, मूस, एयरक्राफ्ट, फिश, एट्सेट्रा. ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो जिनका सिंगुलर भी वही है और प्लूरल भी वही है. आई रिपीट, शीप, डियर, मूस, एयरक्राफ्ट, फिश, एट्सेट्रा. सो ऐसे भी बहुत से वर्ड्स हैं जो अनचेंज रहते हैं. So children, open your English grammar book, page number 24. We have this exercise. So it is tick the correct plural form of the word in each set. So हमें correct plural form को tick करना है. So it is like MCQs. We have been given 3 options in which one is correct. उनमें से एक option correct है. ये the words written with red कलर, जो कि ये क्वेश्चंस हैं, ये सिंगुलर फॉर्म है. हमें इसका करेक्ट प्लूरल फॉर्म सर्च करना है और टिक करना है.
और ये जो दिए गए हैं ऑप्शंस इनमें से। सो फर्स्ट इज मैन, मैन मतलब पुरुष व्यक्ति, मैंस होगा, मेन होगा या मेंस होगा। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। आई टोल्ड यू रिसेंटली कि कुछ वर्ड्स हैं जो कि कोई रूल फॉलो नहीं करते हैं। हमने देखा है कि ए की प्लेस पर ई आ गया है, मैंस नहीं होगा, इट सेल्फ मीन्स प्लूरल, इसका खुद का ही अर्थ है प्लूरल। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड इज गॉट, गॉट क्या है, बकरी, गॉट्स, गोएट्स, गोएटिस। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट फॉर गॉट। ये कौन सा रूल है कि सिंपली हम ऐड करते हैं एस, गॉट्स। कैंडी, कैंडी क्या है, जो हम खाते हैं, आइसक्रीम स्टिक में होती है, उसे हम कैंडीज बोलते हैं जनरली। CANDY, हेयर यू कैन सी वाई है और वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। तो हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे चिल्ड्रन, IES। वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो हम IES वाला रूल अप्लाई करते हैं एंड देन दिस ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस वर्ड कैंडीज। वाई रिमूव हो गया और हमने IES वहाँ पर यूज़ किया। सो CANDIES, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। सो एट नंबर 4 गूज, गूज का क्या होगा, ये मैन की तरह ही है, गीस हो जाएगा। ये वही वाला है कि इट डजंट फॉलो एनी रूल, तो गूज का गीस होगा। चाइल्ड, चाइल्ड का क्या होगा चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन, तब हम चाइल्ड लिखेंगे और वन से ज़्यादा हैं तो चिल्ड्रन। लीफ, लीफ है एक पत्ती और हमें इसका प्लूरल ढूंढना है। एफ है एंड में, तो एफ का क्या हो जाएगा, VES। हम एफ को रिमूव करेंगे और ये जो लेटर्स हैं LEA देन VES। दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट, वी विल टिक दिस ऑप्शन। एट नंबर 7 फूट, फूट का क्या होगा चिल्ड्रन, प्लूरल फीट। ये वही है जो कि कोई रूल फॉलो नहीं करता है, फूट का फीट। फूट मतलब एक पाँव, फीट मतलब मोर देन वन। माउस, माइस, माउस, माइस। कुकी, कुकी, ये सिंपली हमें एस ऐड करना है, कुकीज़। कुकी क्या होता है, एक छोटा बिस्किट, और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन, कुकीज़। नेक्स्ट इज ऑक्स, ऑक्सन। ऑक्स का प्लूरल क्या होगा चिल्ड्रन, ऑक्सन। बेबी, बेबी वाई वाला रूल है, वाई को रिमूव करेंगे क्योंकि बी कॉन्सोनेंट है। BABIES, babies. This will be the correct option for the word baby. Next is potato, POTATO, potato. ये वो रूल है चिल्ड्रन कि हम सिंपली S या ES लगाएंगे, like buffalo, buffaloes, tomato, tomatoes. So this will be the correct option for potato. So children, next exercise is exercise A, that is on page number 24. Don't forget to write down the classwork and today's date. This is your classwork. You have to do it in the book itself. So exercise A, encircle the plural forms in the box. हमें encircle करना है जो plural form में है words इस box में. So we have been given mixed words, singular words भी हैं, plural words भी हैं. So हमें सिर्फ plural form के words को circle करना है. So we will read and discuss each word one by one. बॉटल, बॉटल क्या है, बोतल, सिंगुलर फॉर्म में है। दिस इज़ बोर्ड, बोर्ड कोई भी बोर्ड हो सकता है। दिस इज़ इन अगेन इन सिंगुलर फॉर्म। बॉक्सेस, बॉक्सेस क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, बॉक्स से बना है बॉक्सेस। और इसमें कौन सा रूल अप्लाई हुआ है चिल्ड्रन, एक्स, एक्स हो लास्ट में वर्ड के, तो वो उसके साथ हम ES ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट इज़ माइस, ये जो रूल कोई भी रूल नहीं है, माउस का माइस हुआ है, but mice means more than one, so we will circle this word. Photo, फोटो सिंगुलर नाउन है, एक ही फोटो। स्पून एक ही चम्मच है, सिंगुलर वर्ड है। टीथ, वी हैव डिस्कस्ड कि टूथ का प्लूरल होगा टीथ। टूथ मीन्स एक दांत। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन तो हम टीथ उसको लिखेंगे और स्पेल करेंगे। सो वी विल सर्कल दिस वर्ड। पाउचेस, पाउचेस क्या है चिल्ड्रन, पाउच से बना हुआ है पाउचेस। सो इसमें कौन सा रूल है, CH वाला। वर्ड था, मेन वर्ड था पाउच, और हमने
वो रूल अप्लाई किया कि CH है एंड में, तो वी विल ऐड ES, पाउचेस. दिस इज़ द वर्ड कि इसे हमें सर्कल करना है. पेंसिल, पेंसिल सिंगुलर फॉर्म में है. केबल्स, केबल से बना हुआ है केबल्स, सो सिंपली S ऐड हुआ है यहाँ पर. केबल, केबल्स, तारे. एक है तो केबल बोलेंगे, एक से ज़्यादा है तो वी विल कॉल इट केबल्स. मैन, मैन क्या है? मैन का प्लूरल फॉर्म है MEN. मैन इसका सिंगुलर फॉर्म होता है और प्लूरल में वी यूज़ द वर्ड MEN, मैन. डियर, डियर आपको बताया था चिल्ड्रन कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि प्लूरल और सिंगुलर सेम रहते हैं. सो डियर इज़ वन ऑफ देम. डियर उनमें से एक है. सो इसे हम कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, इसे हम सिंगुलर भी कंसिडर कर सकते हैं, प्लूरल भी. लिलीज, सो लिली से बना है लिलीज. लिली मतलब एक फ्लावर होता है. जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वन देन वी कॉल इट लिली. व्हेन वी टॉकिंग अबाउट मोर देन वन तब हम उसे लिलीज बोलते हैं. सो ये Y वाला रूल था. Y से पहले कॉन्सोनेंट था LILY. लिली का स्पेलिंग होता है, तो Y से प्रीसीड क्या लेटर है? L. सो तो Y को रिमूव करके IES चेंज करते हैं, IES ऐड करते हैं. सो LILIES, लिलीज. नेक्स्ट इज़ फूट. फूट मतलब एक पाँव. ये सिंगुलर नाउन है. ट्रे सिंगुलर नाउन है. ड्रम्स, ड्रम से बना है ड्रम्स. सो एक ड्रम होता है तो ड्रम होता है, और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन देन वी विल राइट ड्रम्स. तो ये प्लूरल फॉर्म में है, सो हम इसे सर्कल करेंगे. पीस, पीस एक किसी भी चीज़ का एक पीस हो सकता है. ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होता है चिल्ड्रन? पीसेस. नेक्स्ट इज नाइफ्स. ये FE वाला रूल है चिल्ड्रन. वर्ड के एंड में F या FE होता है तो उसे रिमूव किया जाता है और VES हम ऐड करते हैं. KNIFE मेन वर्ड है, और हमने जब FE को रिमूव किया KNIVES हमारे पास प्लूरल आया. सो KNIVES प्लूरल फॉर्म में है, सो वी विल सर्कल दिस वर्ड. चिल्ड्रन, चाइल्ड का प्लूरल क्या है चिल्ड्रन? ये वो है वर्ड जिसमें कोई रूल अप्लाई नहीं होता है. बिस्किट, बिस्किट सिंगुलर फॉर्म में है. पेपर सिंगुलर फॉर्म में है. डोर सिंगुलर फॉर्म में है. ट्रॉफीज़, ट्रॉफ़ी जो है वर्ड वो ट्रॉफ़ी से बना है. ट्रॉफीज़, ट्रॉफीज़ मतलब एक से ज़्यादा. TROPHY. तो Y से पहले H था. H इज़ अ कॉन्सोनेंट, तो कौन सा रूल अप्लाई हुआ है? IES. सो TROPHIES, Y रिमूव हो गया और IES वाला रूल अप्लाई हुआ. नेक्स्ट इज फ्लैग. फ्लैग होता है एक झंडा. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन देन वी विल राइट एंड कॉल इट फ्लैग्स, झंडे. So children, we will discuss up to here. As you know that today is Monday. Monday is the homework giving day for English subject. So look at the homework children. Now English homework. Your English homework is learn question answer number 1 and 2 of lesson 2. It is a English reader homework. You have to learn question answer number 1 and 2 of lesson 2, that is the fly. आपको क्वेश्चन आंसर नंबर 1 and 2 लर्न करना है. इट्स टेस्ट इज ऑन 28th of August. So that was about our homework. So that's all for our English class today children. We will meet in our next English class. Till then, bye bye. Take care.